So first of all, we will understand what are the different types of ISA instruction set architecture. So different types of the instruction set architecture depend upon the internal storage of the CPU. So the internal storage of the CPU is used to differentiate the different types of the internal storage or instruction set architecture. So these are the stack. In case of stack, the operands will be stored on the top of the stack, and second is the accumulator, and third is a set of registers. In case of accumulator, the one operand must be there in accumulator. If we want to use this particular type of instruction set architecture, then one operand must be there in the accumulator. If we want to use this particular architecture, which is based on the stack, then the one operand or operands must be there in the top of the stack. Okay. So the third is a set of registers in which all the operands will either be there in the registers or will be there in the memory location. So before we will go and discuss the third one, the most commonly type which is used in the different instruction set architecture is based on set of register. But before we will go and discuss the things in detail, I would like to tell you just what is stack. Stack will be an area within a memory which will be working on last in first out. Whatsoever the data we will store to this particular type of memory first, or whatever the data we will store as a last word, that can be assessed as a first word. Okay. So for example, let's suppose we want to store some data. Let's suppose this is the stack area, and some addresses are written over here. मान लीजिए कि ये आपका stack area है और यहाँ पे कुछ addresses लिखे हुए हैं. मान लीजिए कि हमने stack pointer को, which is going to point the address of the stack from where the stack will start, हमने यहाँ पे उसको 1000 choose कर लिया. और let's suppose this one box can be used to store the 4 bytes. तो अगर ये वन बॉक्स 4 बाइट्स को स्टोर करने में के लिए यूज कर रहा है या स्टोर कर रहा है, तो व्हाट डज इट मीन? इट मस्ट बी हैविंग 4 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस ऑफ 1 बाइट कैपेसिटी ईच. तो हर मेमोरी लोकेशन की यहाँ पर 1 बाइट कैपेसिटी होगी. तब जब चारों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 32 बिट डेटा. तो इसलिए ये 1000 इज द फर्स्ट एड्रेस विच विल बी देयर फॉर वन वर्ड के लिए, जिसमें 4 बाइट्स होंगी. और ये 4 बाइट जो होंगी, एड्रेस 1000 के लिए पहली बाइट, देन 1001, 1002 एंड 1003, ये 4 बाइट्स स्टोर होंगी यहाँ पे एक वर्ड के लिए. सिमिलरली 1004 नेक्स्ट वर्ड है, जिसमें अगेन 4 बाइट सेव हो सकती हैं और उनके एड्रेसेस रहेंगे 1004, 1005, 1006 एंड 1007. तो ये 4 बाइट्स इस वर्ड में होंगी. द नेक्स्ट वर्ड विल बी देयर विच विल बी हैविंग द 4 डिफरेंट बाइट्स with different addresses starting from 1008, then second byte जो होगी उसकी 1009, then उसके next जो होगी वो 1010 नहीं होगी, वो होगी 1000A and then next 1000B, because these addresses will be in hexadecimal. तो ये addresses जो हैं hexadecimal में होंगे, decimal में नहीं होंगे. तो 9 के बाद 10 नहीं आएगा, 9 के बाद A आएगा, 0A, then B, C, D, E, F, and after 0F 10 will be there. Okay, तो इसके एड्रेसेस रहेंगे 8, 9, A, B और नेक्स्ट वर्ड के C, D, E, F एंड देन नेक्स्ट वर्ड के 10, 11, 12, 13 एंड देन नेक्स्ट फॉर 14 एंड सो ऑन. फॉर टू अंडरस्टैंड इट्स कंसेप्ट, मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ. लेट्स सपोज दिस इज ए रैक इन योर लाइब्रेरी. मान लीजिए ये लाइब्रेरी में रैक है और हर रैक के जहाँ पे आप बुक रख सकते हो उसको एक एड्रेस असाइन है. तो ऐसा स्पेस बना हुआ है, इस तरह से रैक की डिजाइनिंग है कि अगर आप यहाँ पे एक बुक रखोगे तो उसका एक एड्रेस होगा, उसका एक स्टैक का नंबर होगा.
देन जब आपने एक बुक रख दी, उसके ऊपर एक और बुक रखोगे, उसके ऊपर एक और बुक रखोगे, इस तरह से आप बुक्स का स्टैक लगाते जाओगे। देयर विल बी स्टैकिंग ऑफ बुक्स। तो व्हाट विल यू डू और व्हाट विल हैपन, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे 12 बुक्स रख दिए हैं, और सबसे पहले आपने यहाँ पे एक 4 बुक्स का सेट वन वन करके, 1 बुक एट वन टाइम आपने रखी और 4 बुक्स यहाँ पे रख दी अपने रैक के ऊपर, फिर 4 बुक्स और रखी, फिर 4 बुक्स और रखी। अब जब आपने यहाँ ये वन प्रोसेस वाज कि आपने बुक्स रखी, यानी आपने बुक्स इस स्टैक पे स्टोर करी। अब जब आप बुक्स उठाओगे तो सबसे पहले कौन सी बुक उठाओगे, जो सबसे लास्ट में आपने रखी है। व्हाटसोएवर द सेट यू हैव स्टोर्ड एज लास्ट सेट, सबसे पहले आप वो उठाओगे। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आपने सबसे लास्ट में सेट ऑफ डेटा स्टोर किया है इस मेमोरी में, उसको आप सबसे पहले उठा सकते हो। तो नाउ द हु इज गोइंग टू स्टोर दीज एड्रेसेस, द addresses or responsibility to store such addresses will be a special purpose register whose name may be stack pointer. So this particular stack pointer will be used to point the top of the stack, कि अब यहाँ तक आपने डेटा स्टोर कर लिया और इसके आगे ऊपर पड़ा हुआ, तो ये अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होता है। जैसे आप 1 बाइट या 2 बाइट्स या 4 बाइट्स आप स्टोर करोगे, उसके अकॉर्डिंगली ही स्टैक पॉइंटर उतने एड्रेसेस उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर आपने 1 बाइट रखी है तो 1 बाइट से ऐड हो जाएगा, अगर 2 रखी हैं तो 2 बाइट से ऐड हो जाएगा, अगर 3 रखी तो 3, 4 रखी हैं तो 4 से। तो मैक्सिमम 32 बिट अगर डेटा रखा आपने मान लीजिए, और पहले आपका पॉइंटर 1008 पे था, तो व्हाट इट वाज इंडिकेटिंग दैट द स्टैक एरिया अप टू 1007 इज फुल। 1007 तक आपका डेटा फुल है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर पुश यानी डेटा स्टोर करोगे, तो जितनी भी बाइट्स आप स्टोर करोगे वो 1000 ऑनवर्ड 1008 ऑनवर्ड सेम होगी। अगर आप 1 रखोगे तो 1008 पे होगी और पॉइंटर अपने आप 9 पे चला जाएगा, और अगर फिर से एक और रखोगे तो जो है बाइट 9 पे रखी जाएगी और पॉइंटर अपने आप इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो दिस प्रोसेस विल गो ऑन। ओके, तो जब आप इससे डेटा रीड करना चाहोगे, तो जो भी पॉइंटर जिस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जैसे से 1008, तो ये डेटा किसका उठाएगा, जस्ट इससे पहले तक भरा हुआ ये पॉइंटर ये पॉइंट कर रहा है कि लेट्स सपोज सामने इस तरह से यहाँ पे अगर एरो हो, तो ये इंडिकेट करता है कि अप टू दिस पॉइंट मींस अप टू 1007 the data is already there in the stack memory, and this particular address is pointing the top of the stack, के स्टैक का टॉप है। वही जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि अगर आपने यहाँ पे बुक्स रखी हुई है, तो इसका मतलब ये होगा कि 1007 तक आपकी बुक्स पड़ी हुई है। अगर तो आपको बुक्स उठानी है तो आप 1007 से नीचे 1, 2, 3 या 4 उठाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप बुक उठा सकते हो। अगर आपने बुक्स रखनी है तो 1008 ऑनवर्ड एड्रेसेस जो हैं वो इस पर्टिकुलर स्टैक में, इस पर्टिकुलर रैक में खाली है, जिसमें आप रख सकते हैं। So that is the meaning of this. So if you want to go with the instruction set architecture, which is based on stack, the meaning of this is the whole or all the operands will be there in the stack area, and top of the stack is going to represent the location of the that particular data. जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर 1008 टॉप ऑफ द स्टैक है, तो ये बता रहा है कि आपके एड्रेसेस यानी डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, 1007 से नीचे नीचे, अगर ये ऑटो इंक्रीमेंट बेस्ड है। कुछ प्रोसेसर ऐसे होते हैं जो स्टैक पॉइंटर को ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटो डिक्रीमेंट करते हैं। जो ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं उसमें हर पुश पे यानी हर डेटा रखने पे पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है। जो ऑटो डिक्रीमेंट होते हैं वो हर डेटा हर बाइट रखने पे डेटा जो एड्रेस होता है वो डिक्रीमेंट होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ stack, how we can use the stack. Normally we are avoiding this type of architecture because इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें at one time you can pop the one byte or one word only, not more than that. So every time you need to access the data from the memory, और ये sequential में ही होता है, क्योंकि आप जब डेटा रख रहे हो तो सीक्वेंस में रख रहे हो। जैसे आपने यहाँ पे बुक्स रख दी, 16 बुक्स अगर पढ़ी तो सबसे पहले आप जो
16th नंबर बुक है उसको पहले उठाओगे तब जाके 15 नंबर को उठा पाओगे, जब 15 नंबर को उठाओगे तब जाके 14 नंबर को उठा पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप बुक नंबर 4 को या बुक नंबर 1 को या बुक नंबर 3 को डायरेक्टली उठा लोगे, ऐसा नहीं है। सो इट विल वर्क ऑन व्हाट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो आपने सबसे पहले लिखी है वो सबसे लास्ट में असेस हो सकती है, उससे पहले असेसेबल नहीं है अनटिल अनलेस आप स्टैक पॉइंटर के एड्रेस को चेंज ना करो। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस। नेक्स्ट इज द एक्यूमुलेटर बेस। एक्यूमुलेटर बेस में क्या होता है कि अगर आपने दो ऑपरेंड्स को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इसमें एक कंडीशन होती है कि वन ऑपरेंड मस्ट बी देयर इन एक्यूमुलेटर। एक ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर में होना चाहिए। दूसरा ऑपरेंड आप चाहे तो मेमोरी से उठा लो, चाहो तो आप किसी दूसरे रजिस्टर से उठा लो, बट दिस इज द वन कंडीशन। इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि ये आगे रिस्ट्रिक्ट कर देता है ऑपरेशन को कि सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर कैन पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। नो अदर रजिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल और नो अदर रजिस्टर विल बी असाइंड एनी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन राइट्स। किसी और के पास राइट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर के पास ही है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के। तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ दिस। एंड मोस्ट कॉमनली जो आजकल यूज होता है दैट इज द ए सेट ऑफ रजिस्टर्स, जिसको हम रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी या मेमोरी टू मेमोरी भी कहते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल द ऑपरेंड्स आइदर मे बी आइदर इन रजिस्टर्स और इन मेमोरी लोकेशन। तो ये आगे divided है 3 types, it is divided into 3 types, so we will discuss in the next slide, but here we will try to understand what is the difference between these 3 types of architecture. Okay, with the help of one example, let's suppose we want to perform an arithmetic operation addition and we want to add two numbers. One is stored at A, another is B, and after the completion of this addition method we want to store it at another location called say C. तो हम तीनों अलग अलग क्लासेस से कोशिश करेंगे कैसे हो। In case of first example when we will use the stack, what we'll have to do, हमें क्या करना पड़ेगा, push A, then push B, then we will what do, we will add the data and then we'll perform what, we will perform the addition method. It will perform the addition of A with B and then will store the data to the another register C by doing what, pop C. Okay. So in the second case where we'll have to do the accumulator, we'll have to do what, load A, हमें accumulator में data एक नंबर को accumulator में load करना पड़ेगा. Then we will perform add B. What it will do, it will add the data of A with B and result will be stored into the C and then we will store the result in C. But what will be there in the registers? So in case of this particular third type of ISA, we will have to perform the operations within the registers. तो हम क्या करेंगे, पहला load R1, A को किस में ले आएंगे, R1 में, ये इंटरनल रजिस्टर है मान लीजिए उस CPU का, and then add R1, B नंबर को R1 के साथ ऐड करेंगे, then will store the data of R1 to the C. तो ये R1 का डेटा जो है वो C में स्टोर होगा. So this is a one example how can we understand the operations of the different ISA. Now we will try to understand the things in detail. What is the register based architecture? So mainly in most of the architecture, this particular register based architecture is preferred. So what are the different advantages of this particular type? It is faster than memory, क्योंकि हमें पता है कि जो memory होती है वो बहुत as compared to the speed of the CPU बहुत slow होती है.
कई बार तो 1000 टाइम्स उसकी स्पीड स्लो होती है एज कम्पेयर टू द CPU, क्योंकि मोस्टली द मेमोरी एक्सेस टाइम इज विल रिमेन इन मिलीसेकंड or in microsecond, and the processor's access time is in either microsecond or in nanosecond. Okay, that is why the register to register or register based जो है architecture, that is faster. It is easier for a compiler to use. For a compiler it will be easy to use क्योंकि डेटा जो है ऑलरेडी पहले से ही रजिस्टर में पड़ा होगा, so it will be easy for compiler to compile the data, and it can be used for more effectively. ज़्यादा इफेक्टिवली हम इसको यूज कर सकते हैं. So the register based architecture can again be classified into 3 types. One is called register, second is called register memory, and third is called memory. सबसे पहले वाली टाइप जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होती है, which is called register. It is also called load store architecture. Okay. So what are the different advantages of this? अरे भाई आप अपने सब लोग जो है वीडियो बंद करो. कोई भी वीडियो ऑन नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूँ किसी को. Okay, the first type is the register. So what will be there in the register? All the data manipulation means the operation related to arithmetic and logical operations will be performed within the registers only. रजिस्टर के अलावा कहीं और डेटा मैनिपुलेट नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट टाइम. एंड व्हाट इज द एग्जांपल इज ऐड R1, R2, R3. ओके, so what is the meaning of this instruction? The meaning of this instruction is the data of R2 and R3 will be added, arithmetic operation addition will be performed, and after the arithmetic operation addition the result will be stored into R1. Okay, so this is another type of the register based architecture. So in which add R1, A. So इसमें क्या होगा, एक ऑपरेंड रजिस्टर में होगा और दूसरा ऑपरेंड आप डायरेक्टली मेमोरी से ले सकते हैं. ओके, जितने भी ARM रिलेटेड प्रोसेसर होते हैं वो सारे इस आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, रजिस्टर पे. इट इज आल्सो कॉल्ड लोड स्टोर आर्किटेक्चर. एंड 8086 is a one processor which is based on this. 8085, 8086, 186, 286 वो सारे के सारे इस आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. ओके, तो दिस इज ऐड R1, A. यानी एक नंबर आप जिसका एड्रेस डिफाइन होगा इंस्ट्रक्शन में उसका डेटा आप ऐड कर सकते हो. एक ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर में होगा, एंड आफ्टर द एडिशन द रिजल्ट विल आल्सो बी देयर इन R1. एंड थर्ड टाइप इज द मेमोरी. ये बहुत कम यूज होती है. इन दिस पर्टिकुलर केस दो ऑपरेंड होंगे, दोनों ही मेमोरी में होंगे. उन दोनों ऑपरेंड्स को प्रोसेसर असेस करेगा पहले, फिर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशन अगेन विल स्टोर टू द मेमोरी लोकेशन में ही जिसका एड्रेस, यानी तीनों का एड्रेस, सोर्स, डेस्टिनेशन और जहाँ पे रिजल्ट आना है, उस तीनों का एड्रेस जो है वो, या हम ये कहें कि ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 जो मेमोरी के एड्रेसेस होंगे वो भी इंस्ट्रक्शन का पार्ट होंगे, और जहाँ पे उसको रिजल्ट स्टोर करना है वो भी मेमोरी का पार्ट होगा. These are the 3 types which is called the register based architecture. So register are most preferred architecture. So जो register based architecture है वही mostly prefer होता है. So now we will try to understand the instruction set architecture of DLX processor. The instruction set architecture of the DLX processor can be classified into 5 different categories, and these categories will be differentiated on the basis of the type of operation they want to perform. Okay, so the first type is called load store. The first type of instructions will be their load store. तो इस पर्टिकुलर ग्रुप में जिसका नाम लोड स्टोर ग्रुप होगा, या इस कैटेगरी में जिसका नाम लोड स्टोर कैटेगरी है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आएंगी जिसमें इन विच वी वांट टू लोड द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू जनरल पर्पस रजिस्टर और फ्रॉम जनरल पर्पस रजिस्टर टू मेमोरी. यानी मेमोरी से जनरल पर्पस रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करना हो या जनरल पर्पस रजिस्टर से डेटा मेमोरी में स्टोर करना हो, वो सारे इंस्ट्रक्शन जो होगी वो किस में आएंगी,
under the category of load and store. So here GPR can also be written as integer ही लिख सकते हैं हम, जनरल पर्पस रजिस्टर के सेट को इंटीजर का सेट भी कह सकते हैं. So next group is the move operations. In case of move operations, all the instructions will come under this particular group, in which the data will have to be moved between what? General purpose register to floating point register, floating point register to general purpose register, general purpose register to special purpose register, and floating point register to floating point register. So here move mnemonic will not be used to store or load the data from the memory. If we want to load or store the data from or to the memory, we will use the different set of mnemonics which will be come under the load and store. यानी load के लिए L use होगा, store के लिए S use होगा. Mostly हम इसी को use करेंगे. But whenever we want to move the data, we will use the move mnemonic whenever we want to transfer or receive the data between the register to register. कौन से रजिस्टर? जनरल पर्पस रजिस्टर में से फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर से जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर से स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर से जनरल पर्पस रजिस्टर, और फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर टू फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर. So whenever we want to perform such type of operations, means whenever we want to copy or paste the data within the registers, we will use the mnemonic move, and all those instructions will come under this group, which are used to transfer or receive the data within the register to register, one type of register to another type of register. The third is the ALU operation. All those instructions will come under this group, which is called the ALU operations, and which are used to perform all the arithmetic and logical operations. And these arithmetic and logical operations are add, subtract, or XOR, and shift, compare. So all these are the arithmetical and logical operations. The fourth is the branch related. So as we know that normally the sequence of execution of a computer is to execute the instructions in sequential form. It will start from its starting address and then will execute the instructions one by one. Number 1 से शुरू होके फिर सेकंड को, फिर थर्ड, फोर्थ, एंड प्रोसेस विल गो ऑन. जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आए, पहले आपने पहला सेमेस्टर कंप्लीट किया, फिर सेकंड सेमेस्टर गए, फिर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट, आपके 8 सेमेस्टर. तो सिमिलरली मान लीजिए एक प्रोग्राम 8 इंस्ट्रक्शंस का है, तो आप यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन नंबर 1, विल एग्जीक्यूट 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. प्रोग्राम इज ओवर. बट इन सम केसेस, जैसे आपके करिकुलम में भी ऐसा ही है कि यू विल हैव टू कंप्लीट द फर्स्ट 7 सेमेस्टर्स इन द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, और आप यहीं पे क्लासेस करोगे और यहीं पे ही एग्जाम दोगे और फिर आप प्रमोट हो जाओगे नेक्स्ट सेमेस्टर. बट इन 8th सेमेस्टर you will have to complete your 8th semester in the industry. Then means the sequence of execution will change. आप 8th semester में कॉलेज कैंपस में नहीं जाओगे, आप जिस इंडस्ट्री में, किसी एक इंडस्ट्री में चले जाओगे, उस इंडस्ट्री में ही जाओगे, कॉलेज कैंपस में नहीं जाओगे. So after the completion of that particular training, again you will come back to college campus, give the final viva, and then will get the degree of 8th semester. So similarly, in cases for all such programs in which a program within the program, a sub program within the main program, if user want to perform or want to change the sequence of execution, जो कि sequential में कर रहा था, उसको अगर change करने की जरूरत है, then we will have to use the instructions later to branch. जो branch change करने के लिए instruction responsible हैं, उन instructions को use करेंगे, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रांच को चेंज कर देंगी. और जो भी हम जिस जगह पे भी हम कहेंगे कि अब आप यहाँ पे इस सीक्वेंस में नहीं करोगे, अब आप 8 नंबर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अब आपको सो एंड सो प्रोग्राम को जो वहां पे पड़ा हुआ उसमें जाके आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, देन
the sequence of program will change and will jump to the specified address, और वहां पे जाके जितनी भी इंस्ट्रक्शंस पड़ी उन सबको एग्जीक्यूट करेगा. After the completion of that particular set of instruction will come back to the main program. Okay, so this is called branch related instructions. ये branch related instructions conditional भी हो सकती हैं और unconditional. अब conditional और unconditional को कैसे differentiate कर सकते हैं? Again I will compare it with a similar example. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 8th semester में आपको ट्रेनिंग पे जाना है. यहाँ पे तो ट्रेनिंग आपकी अनकंडीशनल है. क्यों? क्योंकि आप जैसे ही 7th सेमेस्टर से निकलोगे, अब ये मैंने नहीं कहा कि 7th सेमेस्टर पास कर लोगे, जैसे ही आप 7th सेमेस्टर से निकलोगे, whatsoever will be your result of the first 7 semesters, you and university is not going to bother about that. You will have to change your sequence. आपको ट्रेनिंग करनी ही है. That is unconditional. कि आप ट्रेनिंग में जाओगे, वहां पे ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करके आके आप फिर से यूनिवर्सिटी में आओगे और अपना एग्जाम दोगे. But in case of conditional related branch instructions, before कि ये आपको सीक्वेंस में भेजे, it will check one condition. It will do what? It will check one condition. So if condition will satisfy, then and then only it will allow you to change the branch. Otherwise it will not allow to change the branch. You will have to remain there within the same sequence or within the same program. So again अगर मैं इसको उसी एग्जांपल के साथ कंपेयर करूं, तो मान लीजिए कि इंस्टीट्यूट यहाँ पे किसी के ऊपर कंडीशन लगा दे कि आप 8th सेमेस्टर में तभी जाओगे ट्रेनिंग करने के लिए जब अगर आपका 4th सेमेस्टर तक या 5th सेमेस्टर तक या 6th सेमेस्टर तक आपके सारे पेपर क्लियर हैं. तो दिस इज कंडीशन. सो बिफोर इंस्टीट्यूट विल गिव यू द रिलीविंग लेटर फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट टू ज्वाइन द इंडस्ट्री फॉर योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दे विल हैव टू चेक द कंडीशन. क्या आपने कंडीशन सेटिस्फाई करी है या नहीं? अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी होगी तो वो क्या कहेंगे आपको कि यहीं पे रहो, पहले कंडीशन सेटिस्फाई करो फिर आप जाओगे. So this is the difference between condition and unconditional related instruction. So all the instruction will come under this particular group or this particular category, in which or those instruction will be responsible to change the sequence of execution of the instruction. Next is the floating point operations. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. तो उसके लिए एक अलग से ALU होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन. फ्लोटिंग पॉइंट के परफॉर्म करने के अलग से ALU होता है. So all those instructions which will be used or responsible to perform the arithmetic and logical operations of the floating point representation, वो इस ग्रुप में आएंगी. जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि ये सिंगल प्रिसीजन भी होता है और डबल प्रिसीजन अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी होते हैं. तो सिंगल प्रिसीजन क्या होता है? जिसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द मैंटेसा एंड एक्सपोनेंट along with the sign bit is 32. एंड इन केस ऑफ डबल प्रिसीजन क्या होगा? जिसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो रिक्वायर्ड है मैंटेसा, एक्सपोनेंट एंड साइन बिट को स्टोर करने के लिए वो कितने बिट लॉन्ग होंगी? 64. Okay, so this is the difference, and all those instructions which we used to perform all these arithmetic and logical operations will come under floating point operations. So today we will start from the load and store operations. This is the first group, and all those instructions which are used to responsible or used for load and store the data from the memory, that will be called as load and store instructions. Okay, तो ये इनके निमोनिक हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. LW मीन्स लोड वर्ड. अगर आपने 32 बिट डेटा लोड करना है किसी मेमोरी से किसी रजिस्टर में तो आप कैसे लिखोगे? LW मीन्स लोड वर्ड. 32 बिट डेटा आएगा. अगर आप LH लिखोगे तो ये क्या आएगा? लोड हाफ वर्ड. इट इज व्हाट? लोड हाफ वर्ड. सो इट विल लोड द 16 बिट डेटा. इफ यू विल राइट लोड बाइट तो कौन सा डेटा आएगा? यहाँ पे कितने बिट डेटा आएगा? 1 बाइट. Okay, so these are the mnemonic, and how can you write? You can write either by writing LB, LH or LW. ये तो mnemonic इन तीनों में से कोई एक चूज करोगे. Then you will write RD immediate value along with register number. Okay, so RD will be the destination. और ये डेटा कहाँ से आएगा? The data will come from the memory whose address will be the sum of this immediate value along with this source register. This is the source register.
इस रजिस्टर से डेटा नहीं आएगा, ये रजिस्टर एड्रेस जनरेट करने में हेल्प करेगा और ये इफेक्टिव एड्रेस जो है होल्ड करके रखेगा उस मेमोरी से, यहाँ से डेटा डेस्टिनेशन रजिस्टर में आएगा. So we will try to understand with this example. Say LWR1, 30R. So what is the meaning of this instruction? The meaning of this instruction is load the data of that memory location whose effective address is the sum of R2 and 30. जो भी R2 में वैल्यू है वो और 30 दोनों ऐड करके जो भी इफेक्टिव एड्रेस बनेगा, फाइनल इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी का, उस मेमोरी एड्रेस से डेटा सेव होगा, स्टोर होगा. किसमें आएगा स्टोर होके? R1 में. और कितने बाइट आएगा? 32. क्यों? क्योंकि आपने क्या लिखा है? LW. अगर LH लिख दोगे तो कितने बिट आएगा उस एड्रेस से? 16 बिट. अगर आप LB लिखोगे तो कितने बिट आएगा? 8 बिट. ओके. तो यहाँ पे नीचे सेकंड एग्जांपल में हमने लिखा है LB, तो क्या होगा? LB R1, 1000 R3. यहाँ पे आप कोई भी रजिस्टर एज ए डेस्टिनेशन यूज कर सकते हो और कोई भी रजिस्टर एज ए सोर्स एड्रेस कर सकते हो यूज. ओके. आप डेस्टिनेशन में R0 नहीं कर सकते, बस डेस्टिनेशन में R0 नहीं कर सकते क्योंकि R0 की हमेशा फिक्स वैल्यू होती है 0. हमेशा क्या वैल्यू होती है उसकी? 0. तो यू कैन नॉट यूज, यू कैन यूज इट फॉर एड्रेस होल्ड करने के लिए कर सकते हो, यहाँ पे R0 हो सकता है लेकिन उसमें नहीं. Then if we want to store the data, what will we do? अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो क्या करोगे? SW, SH, SB. स्टोर वर्ड, स्टोर हाफ वर्ड, स्टोर बाइट. वैसा ही लिखना, इसमें भी आपको कोई उल्टा चेंज नहीं होगा. क्या होगा? स्टोर वर्ड इमीडिएट RS, RD. ओके. सो लेट मी चेक सिंटैक्स. दोनों में से एक गलत है कोई, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सिंटैक्स गलत है. आई एम जस्ट चेकिंग इट एंड देन विल कंफर्म व्हिच वन इज करेक्ट. So this one is the correct method. So it will be written as SW, SH, SB, RD, SB. ये उल्टा होगा. RD इसी तरह से लिखा जाएगा. RD इमीडिएट RS. जैसे ये पहले डेस्टिनेशन आएगा फिर एड्रेस आएगा, इस तरह से लिखा जाएगा जैसे ये एग्जांपल में लिखा हुआ. SW R1, 30 in bracket RD. So what does it mean? The meaning of this is the data of the register R1 will be stored to a memory location whose address is what? Whose address is 30. Okay. Similarly, ये लोड R1 हो गया, ये नहीं होगा. ये आ गया आपका LF. If these the upper set of instructions are used to load the data from जनरल पर्पस रजिस्टर. यहाँ पे अगर आपको जनरल पर्पस रजिस्टर लिखने हैं तो आप ऐसा लिखोगे. लेकिन अगर आप इफ यू वांट टू लोड द डेटा टू द फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स, देन यू विल हैव टू यूज द डिफरेंट निमोनिक कॉल्ड LF और SF. LF means load floating point, SF means store floating point. Okay. If you want to load the data to any floating point register, you will write LF FD, यानी यहाँ पे आप उस floating point register का नाम लिखोगे. F0, F1, F2, F3, 4, 5, 6 इस तरह से लिखोगे आप, जो जिस भी floating point register में आपको डेटा स्टोर करना है. As we know that the 32 floating point registers are there in deluxe register and 32 general purpose registers are also there. Okay. So ये भी वैसा लिखा जाएगा, but there is a difference. Difference is what? To assign the indirect address of the memory location, we will use the general purpose registers. We will not use the floating point register to assign the address to the memory. तो डेस्टिनेशन तो फ्लोटिंग पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा दैट विल बी RS. वो क्या होगा? RS. ओके. सो स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट कैसे लिखोगे? स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट इमीडिएट RS FS. Next is the LD SD RP immediate.
LD क्या है, ये किसके लिए है, सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा मूवमेंट। अगर आपने सिंगल प्रिसीजन के लिए यानी 32 बिट वैल्यू को लोड करना है किसी फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर में, देन यू विल यूज LF और SF फॉर लोड एंड स्टोर। बट इफ यू वांट टू लोड द डेटा फ्रॉम डबल प्रिसीजन floating point register, if you want to load the data for double precision floating point register, you will use LD। अगर आपको डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा स्टोर करना है तो आप क्या लिखोगे, SD। तो हाउ विल यू यूज दिस LD, RP कॉमा इमीडिएट RS। ओके, तो यहाँ पे RP का मतलब क्या है, रजिस्टर पेयर। इट इज व्हाट, ये बेसिकली FP होगा। दिस इज व्हाट FP, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर पेयर का आप यहाँ पे डेटा जो है वो लिखोगे फ्लोटिंग पॉइंट। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर तो आपने सिंगल प्रिसीजन करना है तो रजिस्टर्स के नाम रहेंगे F0, F1, 2, 3, 4, 5 अप टू F31। बट अगर आपको 32 बिट यानी 64 यानी डबल प्रिसीजन यूज करना है तो रजिस्टर्स पेयरिंग में हो जाएंगे। R0 विल बी पेयर्ड विद R1 विल बिकम F0, रजिस्टर पेयर का नाम क्या हो जाएगा, F0। सिमिलरली F2 विल बी पेयर्ड विद F3 and the name of that particular pair will become FP यानी रजिस्टर पेयर 2। जैसे और 4 और 5 जैसे पेयर होगा तो उसका नाम होगा रजिस्टर पेयर 4। So similarly you have to write the name of floating point pair and the data will be moved from the memory to the will be loaded to the memory to the specified register pair। okay, similarly आप ST के लिए है, ये LHU और LBU जो हैं these are used for unsigned। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन साइंड डेटा के लिए हैं, साइंड। सो एंड इफ यू वांट टू लोड द डेटा अनअसाइंड देन यू कैन यूज द दीज टू निमोनिक्स LHU एंड LBU to load the data half word or full word if unsigned नंबर है आपके। तो साइंड और अनसाइंड में डिफरेंस ये होता है कि इन केस ऑफ अनसाइंड we are not going to bother about the sign of the number, all the data bits will be used to contribute the magnitude of the number। and in case of signed number MSB हमेशा sign को represent करती है और other than the MSB all the bits will be used to contribute the magnitude। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, let's suppose if you are having 16 bit data, let's suppose you are having 16 bit data unsigned, or sorry signed 16-bit data, and let's suppose you want to move that 16-bit data to a 32-bit register। रजिस्टर तो हमारे पास सारे 32 बिट हैं, तो अगर आप 16-बिट डेटा 32-बिट रजिस्टर में मूव करना चाहोगे तो क्या होगा, जो नीचे वाली लोअर ऑर्डर सिग्निफिकेंट बाइट्स बिट्स हैं 16 वो तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगी क्योंकि वो तो डेटा। बट जो अपर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनके लिए फिल करने के लिए डेटा है ही नहीं क्योंकि 16 बिट डेटा है हमारे पास, और यानी सोर्स हमारा 16 बिट है और डेस्टिनेशन हमारा कितने बिट है, 32 बिट। तो लोअर ऑर्डर सोर्स तो है वो डेस्टिनेशन में जाके फिट हो जाएगा। व्हाट अबाउट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, अगर रिजल्ट अगर नंबर साइंड है तो व्हाटसोएवर द MSB ऑफ द साइंड नंबर विल बी कॉपी टू ऑल द अनफिल्ड बिट्स ऑफ द डेस्टिनेशन। यानी अपर वाली जो अनफिल्ड बिट्स बचेंगी 16, उन सब में MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट विच इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द साइन वो फिल होंगी। अगर ये अनसाइंड नंबर है तो वो सब में 0 फिल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लोड एंड स्टोर आर्किटेक्चर। So that is all from my side. Next time we will try to understand what are the arithmetic operations. If you want to ask any questions, then ask. Yes, you can raise your hand if you want to ask any question. No? That is all from my side for today's lecture.